First of all, we start with Udar Shakti Vikasak Vyayam. This exercise has 5 parts. Let's start with the first. Stand straight with feet together and hands by your side. Now inhale slowly through your nose and distend your abdomen as much as possible. Hold this for 10 seconds. Now exhale slowly through your nose and pull in your abdomen as much as possible. Hold this for 10 seconds. Now relax. We will repeat this cycle 3 times. Now repeat the inhale and exhale. While inhaling, you have to distend your abdomen as much as possible, and while exhaling, you have to pull in your abdomen as much as possible. After a normal breathing, repeat this cycle 3rd time. Keeping your arms and legs straight. Now relax. Now we'll do the 3rd subtle exercise. Stand straight with your feet together and hands by your side. Now put your hands on your hips with fingers pointing backward and thumb pointing forward. Now bend forward. Keep looking forward. Then inhale slowly through your nose and distend your abdomen as much as possible. Hold for 10 seconds. Then exhale slowly through your nose and pull in your abdomen as much as possible and hold for 10 seconds. Now take normal breath and then repeat the inhale-exhale cycle while puffing or distending your abdomen as much as possible and pulling in your abdomen while exhale as much as possible. We will repeat 3 cycles with 2 to 3 normal breaths in between. Then stand back, stand straight and relax. Moving to the 4th exercise, stand straight with your feet together and hands by your side. Now put your palms on hips with fingers pointing backward and thumb pointing forward. Now bend forward to a breeze, looking straight. Then inhale and exhale completely as much as possible. Then pump in your abdomen, distending as much as possible and pulling it in as much as possible. Repeat this pumping in till you can comfortably hold. Then take a break of 2 to 3 normal breathing. And repeat this pumping after exhaling completely again. Take a break of 2 to 3 normal breaths in between and again repeat the cycle of pumping in and out of abdomen after exhaling completely. Then take a deep, long breath and come back in position and relax.
Finally, doing the fifth exercise, stand straight with your feet together and hands by your side. Now put your palms on your hips with fingers pointing backward and thumb pointing forward. Then bend forward to about 90 degrees, looking forward. Now inhale and exhale completely, and without inhaling back, distend your abdomen as much possible and quickly pull it inside as much as possible. Repeat this distend in and pull in for a few times without inhaling. Then take a normal breath and repeat this cycle 3 times. Inhale, exhale completely, and then do the in and out of abdomen for as long as you can hold and do comfortably. Then again a gap of 1 to 2 breaths in between, and repeat the third set. Finally, take a deep, long breath. Stand back and relax. अब हम शुरू करते हैं खड़े होकर करने वाले आसन। सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसे सन सैल्यूटेशन भी कहा जाता है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, बैक प्रॉब्लम, कमर दर्द या कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, दिल की बीमारियां हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हाथों को साइड में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए चेस्ट के सामने ले आएं। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर की ओर उठाते हुए कमर से पीछे की ओर जितना हो सके झुक जाएं। यह हस्तोत्तान आसन है। सांस लेकर रोकते हुए कुछ क्षण यहाँ रुकेंगे, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा रखेंगे और आगे की ओर जितना संभव हो झुक जाएंगे। कोशिश करेंगे आपकी हथेलियां जमीन को छू जाएं और आपका माथा घुटने से लगा हुआ हो। यह है पादहस्त आसन। इसके बाद धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते हुए हाथों को बाएं पैर की साइड में ही रखेंगे और सामने की ओर देखते हुए कमर और जो पैर पीछे है उसे सीधा और खिंचा हुआ रखेंगे। कुछ सेकंड इस अश्व संचालन आसन में रुकेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं और पेल्विक रीजन को ऊपर की ओर उठाते हुए 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पर्वत आसन में कुछ देर रुकेंगे। आपके पैर, हाथ और कमर खिंचे हुए और बिल्कुल सीधे रहेंगे। कुछ समय रुकने के बाद धीरे से सांस लेते हुए जमीन पर इस प्रकार लेट जाएं कि आपकी चिन थोड़ी, चेस्ट, घुटने, पैर के पंजे और हथेलियां जमीन को छुएं, बाकी शरीर का भाग ऊपर उठा रहे। यह है अष्टांग आसन। आपके 8 अंग जमीन को स्पर्श कर रहे होते हैं। कुछ समय के लिए इस आसन में रुकेंगे। सांस छोड़ेंगे, फिर धीरे से सांस लेते हुए अपने कमर से ऊपर के भाग को जितना हो सके खींचते हुए पीछे की ओर झुकाएंगे। यह भुजंग आसन है। कुछ समय इसी अवस्था में रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वत आसन में अपने पेल्विक रीजन को ऊपर की ओर उठाते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और कुछ समय इस अवस्था में रुकेंगे।
आपके पैरों के पंजे, एड़ी और पंजा पूरा जमीन पर टिका हुआ, हथेलियां जमीन पर, उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई। फिर सांस लेते हुए पर्वतासन से अश्व संचालन आसन में जाएंगे। इस बार अपना बायां पैर पीछे रखते हुए दायां पैर आगे रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में, सर सीधा सामने की ओर ध्यान केंद्रित। कुछ समय अश्व संचालन आसन में रुकेंगे। इसके पश्चात सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों पर सीधे खड़े हो जाएंगे। आपके पैर के घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। अपने माथे को घुटने से लगा दें और कुछ समय इस पादहस्त आसन में बने रहें। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर की ओर उठाते हुए कमर के भाग से पीछे की ओर झुक जाएंगे और हस्तोत्थान आसन में एक बार फिर से कुछ सेकंड्स रुकेंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नमस्कार मुद्रा में आए और यह सूर्य नमस्कार का आपका एक चक्र पूरा हुआ। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेकर थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे इंजन दौड़, जिसे हृदय गति भी कहा जाता है। यदि आपको कमर में दर्द, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी या कोई मसल इंजरी हो तो इस आसन को ना करें। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। पूरे आसन के दौरान आप सामान्य तरीके से सांस लेते रहेंगे। अब अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बनाते हुए अपनी फोर आर्म को ग्राउंड के पैरेलल उठा लें और इसी प्रकार अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपनी थाई को और पैर के पंजे को जमीन के पैरेलल उठा लें। अब इसी प्रकार दूसरे दाएं हाथ और बाएं पैर की इसी प्रकार मुद्रा बनाएं। अब यही प्रक्रिया आपको थोड़ी स्पीड के साथ दोहराना है। बायां हाथ दायां पैर ऊपर उठेंगे, फिर दायां हाथ बायां पैर ऊपर उठेंगे। इसे आप थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे। जब आप पैर ऊपर उठाएंगे तो आपकी थाई जमीन के पैरेलल होगी और हाथ की फोर आर्म जमीन के पैरेलल होगी। एक ही स्थान पर खड़े होकर आपको इन मुद्राओं को दोहराना है। फील करें आपके पेल्विक रीजन, एब्डोमिनल रीजन में जो स्ट्रेच और कंप्रेशन हो रहा है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं, टोन अप हो रहे हैं। अपने बॉडी कंफर्ट के हिसाब से जितना आराम से, स्पीड से आप इसे कर सकते हैं, करें। यह मॉडरेट स्पीड सभी के लिए, जो स्वस्थ हैं या थोड़ा अस्वस्थ हैं, सभी के लिए ठीक है। एक बार थोड़ा स्पीड बढ़ा के दिखाएंगे। थोड़े अभ्यास के बाद आप धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखेंगे हृदय गति को करते समय आप बीच बीच में अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हृदय गति हमारे हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी है और इससे हमें वेट लॉस में बहुत मदद मिलती है। जितनी देर आप कर सकते हैं आराम से करें। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए रुक जाए। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को थोड़ा आराम दें। जब आप तेज स्पीड से करेंगे तो आपको पसीना भी आ सकता है। आप 2 से 4 मिनट के लिए
थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। सुखासन या वज्रासन में बैठकर पसीना पोंछे केवल, लेकिन बीच में पानी ना पिए। इस आसन को करने के बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा और गर्मी का प्रभाव होता है, उसके ऊपर यदि आप एकदम से ठंडा पानी पिएंगे तो आपके शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है और आपकी सारी मेहनत तो पानी में जाएगी ही। इसलिए केवल विश्राम करें, लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को रिलैक्स करें और फिर से अपने मन को तैयार करें हृदय गति को दोहराने के लिए। आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं। सामान्य तरीके से सांस लेते हुए इंजन दौड़। पहले बायां हाथ और दायां पैर उठाएंगे, फिर उसके बाद दायां हाथ और बायां पैर उठाएंगे। फिर इसी क्रम को थोड़ा स्पीड से दोहराएंगे। स्लो से मॉडरेट, मॉडरेट से थोड़ा और तेज यदि आपके लिए संभव है तो। किसी एक बिंदु पर आप सामने की ओर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। अपने हाथों और पैरों को देखने का प्रयास ना करें, सामने की ओर ही देखते रहें। हृदय गति का आनंद लेते हुए फील करेंगे कि आपकी बॉडी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, कॉम्प्रेस हो रही हैं और जो आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो रहा है। थाई रीजन को टोन अप करने में, एब्डोमिनल रीजन को स्ट्रेंथन करने में यह बहुत ही लाभकारी आसन है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से टोन अप और रेजुवेनेट करता है यह आसन। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जितनी देर आप इस आसन को 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना आप कर सकते हैं करें। जब लगे अब और नहीं कर पा रहे हैं तब धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम करेंगे बैठकर करने वाला चक्की चालन आसन, जिसे चर्निंग द मिल भी कहा जाता है। यदि आपको उच्च रक्तचाप, कमर दर्द, सर्वाइकल या एब्डोमिनल इंजरी है तो इस आसन को ना करें। आसन के दौरान सामान्य तरीके से सांस लेते रहें। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सामने की ओर फैला लें। फिर दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का गैप बनाते हुए पैरों को खोल लें। अब अपने हाथों को बिल्कुल सीधा करके ऊपर उठाएं और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। कमर को सीधा रखते हुए और अपने हाथों को जमीन के पैरेलल रखते हुए अपने कमर से ऊपर के शरीर के भाग को सर्कुलर मोशन में पहले क्लॉकवाइज बाएं पैर से दाएं पैर की ओर जाएंगे। इस प्रक्रिया को करते समय सामान्य तरीके से सांस लेंगे। मुंह नहीं खुलना चाहिए। आपके घुटने, कोहनियां और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए। इसी प्रकार आप 5 से 10 बार बाएं पैर से दाएं पैर की ओर गोलाकार सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक बार बीच में रुककर 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर यही प्रक्रिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाएं पैर से बाएं पैर की ओर चक्की की तरह हाथों को गोलाकार घुमाते हुए 5 से 10 बार दोहराएंगे। इस आसन के दौरान आप देखिए, आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके पैरों की जो मसल्स हैं, पिछले भाग में जो शाटिका नर्व है, जो आपके हिप जॉइंट से हील तक, एड़ी तक जाती है, वह पूरे तरीके से स्ट्रेच हो गई है। अगर आप इस आसन के दौरान अपने पैरों के पंजों को
बिल्कुल स्ट्रेट और स्ट्रेच रख सकते हैं तो आप इस आसन का और ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें तो आप उन्हें लूज भी रख सकते हैं। 5 से 10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोहराने के बाद हाथों को नीचे ले आएं, लंबी गहरी सांस लें और थोड़ा आराम दें। पैरों को उसी प्रकार खुला रहने दें। एक बार फिर से हम इस आसन को दोहराएंगे। आप इस प्रकार हाथों को पीछे टिकाकर भी थोड़ा रिलैक्स आराम कर सकते हैं। इस आसन को करने से जो आपके एब्डोमिनल रीजन पर प्रेशर पड़ा है, इसे यदि आप एकदम लगातार ही करते रहेंगे तो आपके सिस्टम्स, इंटरनल सिस्टम्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसलिए बीच में रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग करते हुए इस प्रकार हाथों का सहारा लेकर आप बैठ सकते हैं और थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप इस आसन को दोहराने के लिए तैयार हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार गोलाकार सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज, फिर उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज हाथों को घुमाएंगे जैसे कि आप कोई चक्की चला रहे हों। विशेषतः आपको ध्यान रखना है कि आपके घुटने, आपकी कोहनियाँ और आपकी कमर बिल्कुल भी मुड़नी नहीं चाहिए। यह आसन आपके एक्स्ट्रा फैट को निकालने में, आपके थाई रीजन, आपके वेस्ट एरिया में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको निकालने में बहुत ही कारगर है। आपके पेल्विक रीजन के, आपके एब्डोमिनल रीजन के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सभी रेजुविनेट और टोन अप हो जाते हैं। और इस आसन के लगातार अभ्यास से आपके पूरे मस्कुलर सिस्टम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार इस आसन को दोहराने के बाद हाथों को पीछे की ओर रखते हुए गर्दन पीछे झुकाकर लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को थोड़ा आराम देंगे। यह था चक्की चालन आसन, जिसे चर्निंग द मिल भी कहा जाता है। वेट लॉस थेरेपी में अब हम देखेंगे सर्वांग आसन, जिसे शोल्डर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम है सर्वांग आसन, इस आसन में सभी अंगों का उपयोग होता है और इस आसन का सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। अपने पूरे शरीर का भार हम शोल्डर्स, कंधों पर डाल देते हैं, इसीलिए इसका नाम शोल्डर स्टैंड है। यदि आपको गले का आर्थराइटिस, पेप्टिक अल्सर, हर्निया या ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या हो तो इस आसन को करने से बचें। सामान्य तरीके से सांस लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं और पूरे आसन के दौरान सामान्य तरीके से ही सांस लेते रहें। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर ऊपर की ओर उठाएं और 90 डिग्री तक ले जाकर थोड़ा होल्ड करेंगे। फिर अपने हाथों से सपोर्ट करते हुए अपने हिप्स और कमर के रीजन को भी ऊपर की ओर उठाएंगे। अब आपका पेल्विक रीजन और आपके लेग्स दोनों एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हो गए हैं। आपके पंजे खिंचे हुए और ऊपर की ओर पॉइंटेड, आपकी अपर आर्म बिल्कुल स्ट्रेच और ज़मीन को छूती हुई और आपकी हथेलियाँ आपकी बैक को सपोर्ट करती हुई। सामान्य तरीके से सांस लेते हुए आप जितनी देर इस पोज में रुक सकते हैं रुकें। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हुए पहले अपने हाथ, फिर कमर, फिर हिप्स और लेग्स को नीचे ले आएंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को थोड़ा विश्राम देंगे। यह आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, पाचन तंत्र के लिए, शरीर के
प्राण शक्ति के लिए, आपको ऊर्जा देने के लिए अति उत्तम, अति लाभकारी आसन है। इस आसन के नियमित और सही ढंग से किए गए अभ्यास से आप अपने मेटाबॉलिज्म को और डाइजेशन को ठीक रख सकते हैं और अपने शरीर में एक्स्ट्रा फैट को एक्युमुलेट होने से रोक सकते हैं, ताकि आप स्वस्थ और सुंदर बने रहें। थोड़े विश्राम के बाद आइए एक बार फिर से दोहराते हैं सर्वांग आसन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर ऊपर की ओर उठाते हुए 90 डिग्री तक ले जाकर थोड़ा रुकें, फिर अपने हाथों से सपोर्ट करते हुए अपनी कमर और हिप्स को भी ऊपर उठा लें। अब आपकी कमर, हिप रीजन और लेग्स तीनों एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन है। पैरों को और पंजों को ऊपर की ओर खींचकर और पॉइंटेड रखते हुए आप जितनी देर हो सके इस अवस्था में रुकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में लेट जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा विश्राम करेंगे। यह था सर्वांग आसन, द शोल्डर स्टैंड पोज। अगले आसन की ओर जो है नौकासन, द बोट पोज। शाटिका मसल के लिए और वेट लॉस के लिए यह सर्वोत्तम आसन है। इस आसन में आप जो स्ट्रेच अपनी पूरी बॉडी में, मसल्स में फील करते हैं, उससे आपके पूरे शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे बर्न करने में, रिड्यूस करने में आपको बहुत सहायता मिलती है। और पूरे आसन के दौरान सामान्य तरीके से सांस लेते रहें, पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अब केवल अपने हिप रीजन को जमीन पर रखते हुए बाकी पूरे शरीर को, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ एक साथ और कमर सीधी रखते हुए नौका के पोज में शरीर को ऊपर उठा लें। याद रखें, आपके पैरों के घुटने, कोहनियां और कमर मुड़ने नहीं चाहिए। कोशिश करें 30 से 45 डिग्री का एक एंगल बनाएं अपने पेल्विक रीजन से। जितनी देर हो सके सामान्य तरीके से सांस लेते हुए इस अवस्था में रुकें। उसके बाद धीरे से वापस ज़मीन पर लेट जाएं और लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा रिलैक्स करें। इस आसन से जो आपके पेल्विक रीजन, एब्डोमिनल रीजन और हिप एरिया पर प्रेशर डेवलप हो रहा है, वह आपके एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में, रिड्यूस करने में बहुत ही सहायक होता है। इस आसन से आपका पूरा मस्कुलर सिस्टम फ्लेक्सिबल बनता है और जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यदि हम इस आसन का नियमित और सही ढंग से अभ्यास करते हैं तो हम अपनी बॉडी को न सिर्फ फ्लेक्सिबल बना सकते हैं बल्कि अपना वजन भी बहुत आसानी से कम कर सकते हैं और स्वस्थ बने रह सकते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं नौकासन को कैसे करेंगे। अपने हिप्स के ऊपर पूरी बॉडी को सेंट्रलाइज करते हुए, दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर, हाथों को सीधा रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए, पूरे हाथ और पैर खिंचे और तने हुए और उंगलियां आपस में मिली हुई, सामने की ओर देखते हुए स्थिरता बनाएंगे। सामान्य तरीके से सांस लेते रहेंगे। जितनी देर आपकी शारीरिक क्षमता आपको अलाउ करती है रुकेंगे। उसके बाद धीरे से वापस ज़मीन पर लेट जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। यह था नौकासन, जिसमें आपके शरीर की बनावट एक नौका जैसी, बोट जैसी हो जाती है। इसीलिए इसे बोट पोज